Excellent. Thank you so much, guys. Okay. Before we proceed, quickly a little bit about me and our company. Okay. My name is Srinivas P. Kulkarni, and I am the learning and development specialist here at Skillifin. We at Skillifin are on a mission to provide a platform for every individual to learn through fun, innovative, and engaging methods. We focus all our efforts on building and conducting personalized learning and development modules and mentorship plans for individuals, teams, and organizations. So to learn from us every day, kindly request you to ensure that you are connected with us on all our social media platforms. You can see all the social media handles on the screen right now, my friends. Okay. Uh, Before we proceed further, a few quick hints and tips. If you are new to this platform, that is Zoom, okay, don't worry. It's really simple to use. Yeah. All I would request you to do is watch, learn, and understand. At any point in time during this webinar, if I need to tell you about any specific feature about on Zoom, I will let you know about it. The way we just did an understanding of whether you were able to hear me or not. That we did that through the chat window. So we also will be looking at the opinion poll feature, which I'll talk about when we go ahead. Yeah, guys. So without wasting any further time, just a quick 2-3 more tips, and we will go ahead. Okay. You all will be on mute throughout the session, my friends. So at any point in time, if you have a question or anything, you can just type it on the chat window, or what you can do is you can wait for the session to end and type all your questions, and we will be glad to resolve all the questions and answers for you. Yeah. uh, during this webinar, I will encourage you to use the chat window more often. I will encourage you to use this learning method more often, and I suggest that you do it because I'm 100% confident that you will find it valuable, my friends. Okay. Last but not the least, this entire session is getting recorded, my friends. So without wasting any further time, let's quickly begin, my friends. Okay. Right. So we started this journey a week back, and the first thing that we learned, as I said, this is a 3-part series. The first thing that we learned in this journey was how to adapt our mindset during this COVID-19 times. These times which are uncertain, how do we ensure that we have an open mindset? Yeah. Something very important. Uh, now that I'm talking, I will ensure that I talk not only in English but in Hindi also. तो दोस्तों हमने हमारे पहले वेबिनार में हमने देखा कि हम हमारी माइंडसेट, हमारी जो सोच है, कैसे उसको हम इनफाइनाइट बनाएं, कैसे उसको हम आगे बढ़ाएं। जब हम सेकंड वेबिनार की तरफ गए, तब हमने देखा कि हमारे सामने जितने भी अपॉर्चुनिटीज आती है, हम कैसे उनको कैश इन करें। हमने एक मंत्र सीखा था उस टाइम पे, 75% अपॉर्चुनिटी मंत्र। कैसे हम उस मंत्र को इस्तेमाल करके हमें जो भी काम जिसके बारे में हम हमेशा सोच रहे थे, हम उस काम को शुरू करें, ये हमने देखा उसमें। आज दोस्तों हम देखेंगे कि ये जितने भी सारे टेक्निक्स हमने सीखी है, इन सब टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहांस करें। हाउ डू वी एनहांस और मैक्सिमाइज आवर प्रोडक्टिविटी, not only by using all these techniques that we've learned, but going a step ahead and understanding what are the factors that affect productivity. Productivity, हमारे काम करने का जो स्पीड है, उसको क्या अफेक्ट करता है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसको हम मिटिगेट करें, कैसे इसको हम ओवरकम करें। ठीक है दोस्तों, तो बिना कोई भी समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे आज के एजेंडा में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी वो पुअर प्रैक्टिसेस है, कौन सी वो चीजें हैं जो हमें प्रोडक्टिव होने से रोकती है। वही नहीं, हम हमारे आजू बाजू में हमारा जो वातावरण है, हमारे आसपास जो कुछ भी चल रहा है, हम उन चीजों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि वो भी चीजें हैं जो हमारे टाइम को खराब करती है, जो हमें प्रोडक्टिव होने से रोकती है दोस्तों। और एक बार हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये चीजें क्या है, मैं आपको बताऊंगा 8 टिप्स, 8 ऐसी चीजें जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप हमेशा प्रोडक्टिव रहोगे, हमेशा प्रोडक्टिव रहोगे। ठीक है, तो हम ये प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव
काम करने का स्पीड, इसकी जो हम बात कर रहे हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये चीज है क्या एक्चुअली. व्हाट इज इट दैट प्रोडक्टिविटी रियली मीन्स टू अस. ठीक है. तो दोस्तों आप सब अग्री करोगे, मैं आप यहाँ पे जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं और आजू बाजू में या हमारी दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सब एक चीज से अग्री करेंगे कि आपको, मुझे और हम सबको सेम 24 आवर्स मिलते हैं. सबको 24 घंटे ही मिलते हैं. ऐसा कोई नहीं है इस धरती पर जिसको 24 घंटे से ज्यादा मिलते हैं. तो मुद्दा ये है कि ये जो 24 घंटे हमें मिलते हैं, इसको हम यूज कैसे करते हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. 24 घंटे को हम कैसे यूज करते हैं वो बहुत जरूरी है. ठीक है. तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं प्रोडक्टिविटी का, काम करने के स्पीड का. While most people feel productivity is more work done in less time. बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है बहुत सारा काम बहुत कम समय में करना. The true definition is doing the right things at the right time. ठीक है दोस्तों. तो यस, बहुत सारा काम बहुत कम समय में करना शायद सही हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा सही या परफेक्ट ये है कि हम सही चीजें सही समय पर और सही तरीके से करें. That is called as productivity, my friends. ठीक है. या तो एक बार तुरंत दोहरा देता हूं, बहुत सारा काम बहुत कम समय में करना सिर्फ यही प्रोडक्टिविटी नहीं है. तो प्रोडक्टिविटी वो है जहां पे हम सही काम सही तरीके से सही समय पे करें. ये बहुत जरूरी है दोस्तों. ठीक है. तो अगर आप सब लोग जो मैंने अभी कहा वो समझ गए हो, तो कृपया चैट विंडो पे जाइए और मुझे क्विकली यस लिख के भेजिए. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच दोस्तों. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जब हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि प्रोडक्टिविटी है क्या, ठीक है, हमने एक थॉट हमारे दिमाग में अब हमने थोड़ा सा क्लियर कर लिया है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या वो चीजें हैं, ठीक है, जो हमें प्रोडक्टिव होने से रोकती है. तो हम शुरुआत करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है उससे, और हम उस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे. बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी क्या होती है, क्यों मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पाता हूँ. तो इस कंफ्यूजन को भी हम दूर करेंगे. तो शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, वो है मेंटल लॉकडाउन. जी हाँ दोस्तों, मेंटल लॉकडाउन. दोस्तों एक लॉकडाउन है जो हमारी सरकार ने लगा के रखा हुआ है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और एक लॉकडाउन है जो हमने हमारे माइंड पे लगा के रखा हुआ है. जी हाँ. और ये जो लॉकडाउन हमने हमारे माइंड पे लगा के रखा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल है हमारे मन में. सिर्फ और सिर्फ सवाल है, ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, कब मैं अपने दोस्तों से जाके मिलूंगा, बाहर का वातावरण कब बदलेगा. अब प्रॉब्लम ये होता है कि ये इतने सारे जो सवाल है जो हमारे दिमाग में घूम रहे हैं और हम इनके आंसर्स ढूंढ रहे हैं, ये सारे जो चीजें हैं, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट होता है, इससे हमारे स्पीड को अफेक्ट होता है, क्योंकि हम हमारा सारा समय इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने में निकालते हैं. हम हमारा सारा समय जो है ये सोचने में लगा देते हैं कि अरे बाप रे, ये सब कब खत्म होगा पता नहीं. अगर हम इस चीज को थोड़ा सा बाजू में रखें और हमारा फोकस हमें जो काम करना है उस पर करें, तो दोस्तों हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं. और वही मैं आपको बताऊंगा कि क्या है वो 8 चीजें, अगर आप जो आप इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे. जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मेंटल लॉकडाउन है, इसके वजह से जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में जो हम समय लगाते हैं, जिसके वजह से हम जो एक्चुअल काम करना है वो कर नहीं पाते, इसी वजह से हम समय को भी मैनेज नहीं कर पाते. बहुत ही पुअर टाइम मैनेजमेंट रहता है हमारा, हम बिल्कुल किसी चीज को मैनेज नहीं कर पाते. ठीक है. तो मेंटली जो हमारे प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से हम समय को मैनेज नहीं कर पाते. अब सिर्फ ये एक ही चीज नहीं है दोस्तों, या सिर्फ यही नहीं है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है या हमारे स्पीड को कम करता है. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे आजू बाजू में भी होते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो, अगर हम घर से काम कर रहे हैं
मेरे बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पे जो अटेंड कर रहे हैं, जो शायद अभी भी घर से काम कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है, या मैं बोलूंगा कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हम घर से काम कर रहे हैं तो हमें अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर दोस्तों जो है एम्बियंस, हमारे घर का माहौल। ठीक है, होता यह है कि जब हम घर में होते हैं तो हम थोड़ा सा आराम से होते हैं, हम थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइम से चला यही आ रहा है कि काम जो है वो ऑफिस में जाके करना है और घर जो है वो थोड़ा सा आराम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। इसके लिए घर का माहौल, घर का मूड, घर का कंफर्ट लेवल थोड़ा अलग होता है। अब जबकि अचानक से हमें उस लेवल पे जाके काम करना है जहां पे हम बहुत ज्यादा आराम करते हैं, तो होता यह है कि वो हम उसका बैलेंस नहीं कर पाते। और बिकॉज वी आर नॉट एबल टू बैलेंस दिस, इट इज स्ट्रेट अवे अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी। इसके वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्टर की ओर, जो है डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे आजू बाजू में होती रहती है जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कई बार तो हम, एग्जाम्पल देता हूँ, कई बार तो ऐसा होता है कि हम सामने वाले को बता भी देते हैं घर में कि भैया मेरी अभी मीटिंग है, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। लेकिन होता यह है कि बाहर अगर कुछ आवाज, डिस्कशन चल रहा है या उसकी आवाज हमारे कानों में पड़ती है तो हम उससे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये डिस्ट्रैक्शन इवेंचुअली हमारी प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट। तीसरी चीज जो हम देखेंगे वो है वर्क लाइफ बैलेंस। देखिए, हम जब घर पे होते हैं तो हमारी फैमिली मेंबर्स का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हम उनके घर के कामों में उनका हाथ बटाएं। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो गलत है। दोस्तों, एक्सपेक्टेशन तो उनकी होती ही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने एक 2 मिनट पहले बताया, बहुत टाइम से ऐसा रहा है कि घर एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम काम नहीं करते हैं। तो घर में हम घर के काम करते हैं, घर वालों का हाथ बटाते हैं। लेकिन अब जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हमारे फैमिली मेंबर जब हमको बोलते हैं कि भैया मेरा थोड़ा हाथ बटा दो इसमें, या ये कर दो या वो कर दो, शायद उनको ये पता नहीं होता कि वो समय जो है, जिस समय पे वो हमें पूछ रहे हैं, वो समय हमारा काम करने का है। और अगर हमने वो डिसीजन गलत ले लिया तो स्ट्रेट अवे वो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, और चौथी चीज देखते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है, वो है मीडिया। हम घर पे होते हैं, हमारे पास बहुत ही आसान एक्सेस है, टीवी है, बहुत सारे और मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स है उसका हमारे बहुत इजी एक्सेस है अभी फिलहाल। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर कोई न्यूज चल रही है, आप अंदर के रूम में बैठे हुए हो, तो इट इज वेरी इजी, आप बस अपना लैपटॉप या अपना जो भी काम है उसको साइड में रख के आप जाके न्यूज देख सकते हो। इसके लिए हम बहुत एंशियस रहते हैं टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, वो क्यूरियोसिटी बनी रहती है हमें, और बार बार हमारा ध्यान जो है वो उसी तरफ जाते रहता है। अब अगर हमारा बार बार ध्यान उसी तरफ जाते रहा तो अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्टिविटी को वो अफेक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 4 चीजें मैंने बताई, ऐसा भी हो सकता है कि इनको छोड़ के भी और फैक्टर्स हो सकते हैं जो शायद आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करें। लेकिन ये 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो डेफिनेटली हर एक की प्रोडक्टिविटी को वर्क फ्रॉम होम में अफेक्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जब अब जैसे कि हमने देखा कि घर पे जो मेरे काम कर रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और मेरा एक दोस्त है, इसका नाम है सचिन। ठीक है, अभी देखते हैं कि सचिन की लाइफ में क्या दुविधा है। ठीक है, तो एक प्रश्न आएगा आपके स्क्रीन पे जो मैं पढ़ूंगा। इस प्रश्न के कुछ ऑप्शंस होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके आंसर्स चैट विंडो पे ना दे। मैं प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा, ऑप्शंस आपको बताऊंगा, फिर मैं एक पोल रिलीज करूंगा, आपको इस प्रश्न का उत्तर उस पोल पे देना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सचिन की दुविधा क्या है। सचिन मेरा दोस्त है जो एक फैन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता है, और उसे अभी ऑफिस बुलाया गया है क्योंकि वो फैक्ट्री से बहुत ही नजदीक रहता है। तो जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था, मतलब 2-3 महीने पहले, सचिन एक बहुत बढ़िया एम्प्लॉय था, अभी भी है, मगर उस टाइम पे उसकी काम बहुत बढ़िया तरीके से होती थी। अब उसकी दुविधा ये है कि ही इज नॉट श्योर इफ ही विल बी एबल टू बी एज प्रोडक्टिव एज ही यूज्ड टू बी। मतलब अब उसको दुविधा ये है कि पता नहीं मैं उतना प्रोडक्टिव हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो क्या लगता है आपको कि कौन से ऐसे चीजें हैं, कौन सी ऐसी फैक्टर्स है जो उसकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन है लिमिटेड स्टाफ वर्किंग विथ हिम। हम सब जानते हैं कि फैक्ट्री या कंपनियां खुली है
लेकिन फुल स्ट्रेंथ से नहीं खुली है, ठीक है। तो स्टाफ लिमिटेड होने की वजह से शायद उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है, ऐसा उसे लग रहा है। फियर अबाउट हिज ओन वेलबींग, उसे डर है कि मैं अभी फैक्ट्री जाऊंगा, आऊंगा, आते जाते मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई तो, या काम करने का तरीका दोस्तों बदल गया है, ठीक है। आप और मैं बैठे हैं यहाँ पे जूम के ऊपर ये डिस्कशन कर रहे हैं, शायद सचिन को डर है या उसको ऐसा लगता है कि बिकॉज आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद जूम, मुझे ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो उसके वजह से शायद मेरी प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट हो सकता है। या ये सारे फैक्टर्स, लिमिटेड स्टाफ, फियर अबाउट नॉट बीइंग वेल ऑन हिमसेल्फ, या फिर अनफेमिलियर विद डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ओपिनियन पोल शूट कर रहा हूं दोस्तों, पोल शूट होगा, आपको 1 मिनट मिलेगा, आप अपना ओपिनियन उस पोल पे रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1 मिनट दीजिए मुझे, ओपिनियन पोल अभी आपके स्क्रीन पे आएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पे, और आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने आंसर देना भी चालू कर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। तीस सेकेंड हो गए, हम 30 सेकेंड और रुकेंगे। हमारे कुछ दोस्त हैं जो अभी भी शायद सोच रहे हैं। सचिन जो मेरा दोस्त है, जो फैन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता है, वो फैक्ट्री में बुलाया गया है क्योंकि वो फैक्ट्री से नजदीक रहता है दोस्तों। श्योर नहीं है वो कि अभी वो उतना प्रोडक्टिव हो पाएगा जितना वो पहले था। तो क्या, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती है दोस्तों? चारों ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। 1 मिनट खत्म होने के लिए 3 सेकेंड बाकी है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे जो लोग हैं, उन्होंने आंसर दिया ऑल ऑफ द अबाउ, विच इज द फोर्थ वन, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, और यही सही आंसर है। और ये क्यों है, ये हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे ऑफिस में, मेरे वर्क प्लेस में है, जिनकी वजह से शायद मैं, मेरी प्रोडक्टिविटी या मेरे काम करने का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा या हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से ऐसे वो फैक्टर्स हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर, लैक ऑफ स्टाफ। जैसा कि हमने डिस्कस किया था सचिन के एग्जांपल में, कंपनियां खुल तो गई है, फैक्ट्रीज खुल तो गई है, लेकिन पूरा का पूरा स्टाफ अभी काम पे नहीं जा सकता है। तो कुछ प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जिनको घर से काम करना पड़ेगा। अभी सचिन जैसे लोगों की प्रॉब्लम ये होगी कि अगर उन्हें कोई सहायता चाहिए, उन्हें कोई हेल्प चाहिए, उन्हें किसी और का काम करना, फॉर एग्जाम्पल मैं काम एक करता हूँ और दूसरा भी एक काम है, अब मेरा जो कलीग है वो ऑफिस नहीं आ रहा है, तो मुझे उसका काम भी करना पड़ रहा है। अगर उसके काम में मुझे कोई क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा या उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जिसमें मेरा टाइम और जाएगा, जिसके वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज। जैसा कि हमने देखा कि शायद सचिन और उसके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे प्लेटफॉर्म से अभी भी वाकिफ नहीं होंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स का उन्हें पूरी तरह से ज्ञान नहीं होगा। अब हम सबको लगेंगे स्मार्ट डिवाइसेस, एक बहुत बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन लगेगा दोस्तों। ये सारी चीजें कुछ लोगों के पास होंगी, कुछ लोगों के पास नहीं होंगी। जिनके पास नहीं होंगी, डेफिनेटली उनकी प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट होगा, डेफिनेटली। क्योंकि अभी मीटिंग्स हमें जूम या वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे करनी पड़ेगी, तो अगर हम उससे कम्प्लीटली ये वाकिफ नहीं है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। तीसरी चीज, ये कॉमन है, जो मेरे दोस्त जो घर से काम कर रहे हैं और जो मेरे दोस्त ऑफिस से काम कर रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है दोनों में, जो है डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। आजू बाजू में जो नॉइज होता रहता है, बैकग्राउंड में नॉइज होता रहता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस होते रहते हैं। अब हम वीडियो कॉल पे है, अब देखिए मैं भी वीडियो कॉल पे बैठा हूँ, अगर मेरे पीछे आके किसी ने फट से ऐसे हाथ वाथ हिला दिया, तो मुझे वो स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर से मेरे माइंड को वापस लेके आके इस पे फोकस करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। मतलब मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ, मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरी प्रोडक्टिविटी है, इसका लॉस हो जाएगा क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाएगा। तो जैसे मेरा कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाएगा, वैसे बहुत सारे लोगों का हो सकता है, और ये स्ट्रेट अवे आपकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है, ठीक है।
चौथा फैक्टर देखते हैं जो है अननेसेसरी मीटिंग्स। या देखिए अभी वो दौर है दोस्तों जहां पे बहुत सारी चीजें जो है, जो मैनेजर्स है, जो लीडर्स है, वो हमें बताते रहेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो नई नई आती होंगी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि सुबह आके हमारे साथ कोई बात करे और बोले भैया ये चीजें करनी है, तुरंत दोपहर को आके कोई और चीजों के बारे में भी बात करे, तो कम्युनिकेशन हो सकता है और ओवर कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो ये दोनों दिक्कतें नहीं है हमारे लिए, ये दोनों हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करेगी। जो तीसरी चीज है वो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, जो है अननेसेसरी मीटिंग्स। ठीक है, तो अगर हम स्मार्ट है तो हमें करना यह है कि एज फार एज पॉसिबल ये अननेसेसरी मीटिंग्स को अवॉइड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर, दैट्स एंजाइटी। हम सब लोग जो है, जो भी ऑफिस जाने वाले मेरे दोस्त हैं, ठीक है, हम कितना भी कहें, कुछ भी कहें, हमारे मन में एक एंजाइटी होती है, एक डर होता है, यू नो, कि कैसे है, घर पे सब लोग ठीक है कि नहीं। तो जैसे ही हम ऑफिस पहुंचते हैं, हम उन्हें कॉल करते हैं, या फिर हम काम कर रहे होते हैं और उनका कॉल आ जाता है, ठीक है, और बातचीत होती है। अब होता यह है कि हम इतने एंशियस है, और फिलहाल जो आजू बाजू में जो सिचुएशन इतनी खराब है कि हम फट से वो कॉल उठा लेते हैं या हम फट से कॉल कर लेते हैं। अब अगर ये हम करेंगे तो हमारा प्रोडक्टिव टाइम जो है वो हम खा लेंगे, मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़िया नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको भी कैसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएंगे और इसको बताएंगे। अब फिलहाल हमारी जो डिस्कशन चल रही है कि वर्क प्लेस में या ऑफिस में जो प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है वो किन किन चीजों से होती है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, ये एक ऐसा वर्ड है जो मैं पिछले 2-3 महीनों से सुनते आ रहा हूँ दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, न्यूज में बहुत बार सुनता हूँ। एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम सबको जाननी है, कि सोशल डिस्टेंसिंग इज द न्यू वर्क नाउ। अब वो टाइम नहीं होगा जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सब लोग 6x6 के क्यूबिकल में बैठ के काम करते थे, तो उस समय होता यह था कि अगर मुझे कोई दिक्कत होती थी तो मैं बस पलट जाता था, मेरा कलीग रहता था, मैं उससे पूछ पाता था। अब हम 6x6 के क्यूबिकल में नहीं बैठ पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। शायद ऐसा हो सकता है कि हम 6x6 की जगह 3x3 के क्यूबिकल में बैठेंगे। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो ऑब्वियसली हमें उठ के हमारे कलीग के पास जाना पड़ेगा, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, भले ही आज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन टू बिगिन विथ ये शायद हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग हाइजीन, या डिसइंफेक्टिंग द वर्कप्लेस मल्टीपल टाइम्स। सैनिटाइज, वर्कप्लेस को सैनिटाइज करना, डिसइंफेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, लेकिन ये भी हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 ऐसी चीजें हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगी। 7 चीजों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो बिफोर आई गो अहेड, have we all understood the points or the factors that can affect us not only at home but at work also? If you have understood it, please go to the chat window and quickly type a yes. Brilliant. Thank you very much, my friends. Thank you very much. Yeah, let's move ahead. Okay, let's quickly go ahead and try and now understand कि हाउ डू वी एंश्योर कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हमें होते हैं इनको हम ओवरकम कैसे करें। सो दैट इज व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स विद यू गाइस। ठीक है, एंड व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इज नथिंग बट 8 सक्सेस टिप्स। 8 ऐसी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इनके ऊपर अगर आपने काम किया तो मेरा वादा है आपसे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमाइज होंगी, बढ़ेगी और आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन सा है वो पहला फैक्टर। तो पहला फैक्टर है या पहली टिप है आपके लिए, सेट अप योर वर्क स्टेशन विथ एवरीथिंग दैट यू नीड।
ये जो मेरे घर पे बैठ के जो मेरे काम करे, मेरे वर्क फ्रॉम होम वाले दोस्त हैं, पहले उनके लिए ये टिप मैं कैसे यूजफुल है ये बताऊंगा, और उसके बाद तुरंत जो मेरे ऑफिस से काम करने वाले दोस्त हैं उनके लिए ये टिप कैसे यूजफुल है ये मैं बताऊंगा। तो जो मेरे वर्क फ्रॉम होम वाले हैं उन दोस्तों के लिए आपको करना क्या है, आपको घर में एक ऐसी जगह ढूंढनी है, ठीक है, जो कि बहुत कंफर्टेबल हो आपके लिए, जो कि आप जहाँ पे आप एकदम आराम से बैठ पाए और मेक श्योर कर पाए कि आपको जो भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आज मेरे बॉस के साथ मेरे 2 कॉल हैं, तो आपने वो जगह चूज कर ली, अपना लैपटॉप एकदम परफेक्टली प्लेस कर लीजिए उस जगह पे। आपका फोन जो है मेक श्योर करिए कि वो पूरी तरह से चार्ज है, वो सारे इंटरनेट पैक्स जो आपको चाहिए वो रिचार्ज किए हुए हैं। आपका जो भी प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप मीटिंग करने वाले हैं उसका टेस्टिंग कर लीजिए और रेडी हो जाइए अपने काम के लिए। आपने एक बार ये कर लिया तो आई एम श्योर जो आपको डिस्ट्रैक्शंस आने वाले होंगे आगे जाके वो आपको नहीं आएंगे, क्योंकि आपने यहीं पे टेस्ट कर लिया, आपने वो वर्क स्टेशन देख लिया ऑलरेडी, वो जगह देख ली है घर पे जो बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरा पहला टिप। अब इसी टिप को मेरे ऑफिस के दोस्त कैसे इस्तेमाल कर सकते। तो मेरे जो ऑफिस के दोस्त होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका काम होगा दिन भर बैठ के काम करना, कुछ लोग होंगे जिनको शायद मोस्ट ऑफ द टाइम्स खड़े रह के काम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपकी एक जगह फिक्स होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मेरे वर्क फ्रॉम होम वालों को मैंने बताया आपको भी वही करना है। जो भी आपकी जगह फिक्स हो जाएगी जहाँ पे शायद आप खड़े रह के काम करें या बैठ के काम करें, आप अपने आपको जो जो चाहिए, जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उन सबको लेके रेडी रहिए, ताकि जब भी आप किसी कॉल पे जाए या मीटिंग पे जाए या अपना काम करें तो आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम हो दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सी है वो दूसरी टिप। ठीक है, तो दूसरी टिप जो है वो टिप नहीं है दोस्तों, वो एक टूल है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इफ पॉसिबल आप एक पेन और पेपर रेडी रखिए अपने पास। ठीक है, द नेम ऑफ द टूल इज जोहारी विंडो टूल। Basically what this tool means is we have to create a to-do list for us. हमारे दिन के जितने भी काम है उनकी एक लिस्ट बनानी है हमें, और वो लिस्ट जो है हम इस टूल के द्वारा बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये टूल होता क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि लिखा है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। ठीक है, तो पहले इसको जान लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, ये करना है, ये आप सब मानेंगे। और अर्जेंट मतलब आपको अभी करना है। ठीक है, तो वो सारे काम जो इंपॉर्टेंट है मतलब महत्वपूर्ण है और अर्जेंट है जो आपको करने ही है, आप ही को करने हैं, वो सारे काम आपके आएंगे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वाले बॉक्स में। दोस्तों ये एक बॉक्स है, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, इसके आगे अगर हम जाए तो हम देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन नॉट अर्जेंट है। कुछ काम ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे लेकिन अभी अर्जेंट नहीं होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन कामों को शेड्यूल करके रख सकते हैं। मतलब आप अपने आप को बता सकते हैं कि दोस्त ये काम अर्जेंट तो है नहीं, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको 3 बजे कर लेता हूँ या मैं उसको 4 बजे कर लेता हूँ। तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ काम होते हैं जो अर्जेंट होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, अर्जेंट है, जरूरी है, करना ही है, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, अभी के सिचुएशन के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे जो काम है आप किसी और को दे सकते हैं, आप किसी और से करवा सकते हैं। ठीक है, और चौथा जो है, चौथा बॉक्स जो है वो है नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट वो सारी चीजें हैं जो बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं है और बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, मैं आपको मेरी एक टू डू लिस्ट थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैं अपनी टू डू लिस्ट कैसे तैयार करता हूं।
और मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं वो सब मेरे फील्ड से नहीं होंगे, सबके अपने अपने फील्ड्स होंगे। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ अर्जेंट है, ठीक है, वो आप अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाले बॉक्स में डालोगे। आपके लिए जो अर्जेंट है लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट है वो आप अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट में डालोगे। उसके बाद आपके लिए जो नॉट अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है वो आप नॉट अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वाले बॉक्स में डालोगे। और आपके लिए जो नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल अर्जेंट नहीं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारी चीजें आप इसमें डालो। ठीक है दोस्तों, ये जो चीज है ये आपको बहुत हेल्प करेगी, ये मुझे बहुत हेल्प कर रही है, बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रही है मुझे टू एंश्योर कि मेरा जो दिन है वो परफेक्टली प्लान जाए और मेरा थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जस्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि हम इसको ठीक से समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है ऋषभ, ठीक है, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और कैसे आगे बढ़ना है। तो ऋषभ एक सुपरवाइजर है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक सुपरवाइजर है। उसने अभी अभी ये टूल सीखा है दोस्तों, और सच में उसने ये टूल सीखा है। ठीक है, उसको हमारी हेल्प चाहिए। ये जो कोविड-19 ट्रेनिंग की एक्टिविटी है, इसको कौन सी कैटेगरी में आप डालोगे? आपको क्या लगता है? आपको चैट विंडो पे नहीं बताना है, मैं ओपिनियन पोल शूट करूंगा, इसमें 4 ऑप्शंस होंगे। आपको जो ऑप्शन सही लगता है आप उसको क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए दोस्तों। ठीक है, उसको एक्टिविटी जो दी गई है फिलहाल, वो एक्टिविटी है कि प्लान अ कोविड-19 ट्रेनिंग फॉर द एंटायर टीम। मतलब उसके ऑफिस में वो सुपरवाइजर है, उसके लोग अभी अभी ऑफिस आने लगे, तो एक ट्रेनिंग प्लान करनी है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? तो मैं पोल शूट कर रहा हूं, आपको वो पोल मिलेगा और आपको आंसर करने के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और पोल ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन भी है आपके स्क्रीन पे और आंसर ऑप्शंस भी है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए ऋषभ को? बहुत बढ़िया, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने आंसर देना भी चालू कर दिया है। आधा मिनट हो गया है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट 30 seconds गाइस, कीप योर आंसर्स फ्लोइंग। Superb, 10 seconds left my friends. Thank you very much for helping me with the answer guys. I'm glad to know that most of us have said that this will go in the urgent and important category. So let us quickly check, whether whoever has answered this as urgent and important, is that right? Whoever have not answered, don't worry, it's okay. As long as we understand the tool in a better way, I think we can do wonders with this tool guys. Okay, yes. Planning a COVID-19 guideline training for the entire team is something which is very, very important in today's time, and it is urgent. It has to be done by us. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको मेरी एक सैंपल टू डू लिस्ट बताऊंगा जो मैंने तैयार की हुई है। तो यू कैन टेक अ मिनट, स्पेंड टाइम ऑन दिस एंड लुक एट दिस। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी कोविड-19 ट्रेनिंग को प्लान करके अपने एम्प्लॉयज के लिए करूं। देखिए अभी मेरे लिए मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट जो रूटीन चेकअप होता है उसका अपॉइंटमेंट उसको कॉल करना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये अर्जेंट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो कॉल मुझे ही करना है ऐसा जरूरी नहीं है, मैं उसको डेलीगेट भी कर सकता हूँ। मैं मेरी मम्मी डैडी या मेरे वाइफ या फिर मेरे भाई बहन को भी बोल सकता हूँ कि भैया आप कॉल करके एक अपॉइंटमेंट बुक कर लो, पर मैं वो अपने टू डू लिस्ट में रखूंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अपॉइंटमेंट आज ही कॉल करके लेनी है क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि आपको आज कॉल करना है। ठीक है, और एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, मेरे टीवी कनेक्शन का रिचार्ज करना।
इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है, ठीक है। कनेक्शन जो है उसकी वैलिडिटी जो है आज रात तक है, तो मतलब ये मैं शाम को भी कर सकता हूँ या मेरे सारे इंपॉर्टेंट काम खत्म होने के बाद भी कर सकता हूँ। और कुछ चीजें ऐसी है जैसे टीवी देखना, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक देखना, इंस्टाग्राम देखना, ट्विटर देखना, अब इस मोमेंट पे ना मेरे लिए अर्जेंट है ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे काम भी जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है, लेकिन अभी के लिए अर्जेंट और इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ, लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, इफ all of you have understood this tool properly, please go to the chat window and quickly let me know about it. Okay, that's great. Yeah, I think I can see a lot of people saying a yes. Don't think for Goa plan after COVID-19. No, I will not, my friend. It is something that I have been planning for a very long time. पता नहीं वो कब execute होगा, ठीक है? But thank you very much for your suggestion, my friend. ठीक है? So thank you guys. आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हमारी तीसरी टिप की तरफ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये जो टिप है इसका नाम है, एक सेकेंड ना दोस्तों, शायद हाँ सॉरी, तो इसका नाम है अप्लाई अ 90-90-1 रूल व्हाइल डिसाइडिंग योर शेड्यूल। सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताता हूं ये क्या है, ठीक है। पहला जो 90 है, जिसने ये रूल बनाया है, मैं जैसा बनाया वैसे आपको बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस रूल को कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पहला जो 90 है उसका मतलब है कि पहले 90 दिन। दूसरा जो 90 है वो है दिन के पहले 90 मिनट। और जो 1 है वो एक इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम, प्रपोजल, आइडिया, उसके ऊपर काम करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं यही चीज का, प्लान अ कोविड-19 ट्रेनिंग। सो जैसे ही मैं ये लिख दूंगा कि ये मेरा अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है, अब अगर आप मेरी टू डू लिस्ट देखोगे तो उसमें 3 चीजें हैं जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन 3 में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मेरे लिए आज की डेट में है वो है कोविड-19 की गाइडलाइन ट्रेनिंग करना मेरे सारे एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे सारे एम्प्लॉयज सेफ रहें, ठीक है। तो अब ये रूल मैं कैसे अप्लाई करूंगा? तो जैसा मैंने कहा, पहला 90 है is the first 90 days from the date you write down your important work. मैंने आज लिखा है तो आज से आने वाले 90 दिन रोज सुबह के पहले 90 मिनट मैं ये जो प्लान कोविड-19 ट्रेनिंग है मैं इसके ऊपर रोज काम करूंगा। ऐसा हो सकता है कि मेरी प्लानिंग जो है वो एक हफ्ते में हो जाए और मेरे जो 150 एम्प्लॉइज है उनको ट्रेन करने का काम शायद मेरा टोटल 3 हफ्ते में हो जाए। तो जिस दिन ये खत्म होता है उस दिन मैं मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क लूंगा और उसको इस रूल के अंदर फिट कर दूंगा ताकि मैं उसके ऊपर भी काम कर सकूं। आर यू ऑल विथ मी? इफ यू आर, प्लीज क्विकली टाइप अ yes on the chat window. Excellent. Thank you very much, my friends. ठीक है? So I'm glad that all of us have understood the 90-90 rule. तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब ये जो मेरा चौथा टिप है ये भी एक रूल है। देखिए, मेरा जो दूसरा टिप था वो एक टूल था विच इज जोहारी विंडो। तीसरी टिप थी 90-90-1 रूल। चौथा टिप है वो भी एक रूल है विच इज टच इट ओनली वंस रूल, दैट इज कंप्लीट वन टास्क एट अ टाइम। अगर आपने एक टास्क हाथ में लिया है दोस्तों, तो इसका सिंपल मतलब यह है कि आप उस टास्क को एंड टू एंड कंप्लीट करें। मतलब जब आप उस टास्क पे काम कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि शायद कोई अर्जेंट आ जाए, कुछ और इंपॉर्टेंट आ जाए आपके लिए, शायद ऐसा हो सकता है।
मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन दिस टास्क इन हैंड, आप इस टास्क को कंप्लीट कीजिए और फिर अपने टास्क पे जाइए। मल्टीटास्क मत कीजिए, इज व्हाट दिस रूल सेज। टच इट ओनली वंस। किसी भी चीज को एक ही बार हाथ लगाइए और खत्म कीजिए। अपने एंड से जो भी आपको करना है उसको आप खत्म कीजिए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी 5वीं टिप। Schedule your breaks to help you mentally check out and check back in। दोस्तों, ब्रेक्स शेड्यूल करना बहुत जरूरी है। एक सिंपल टिप देता हूं मैं आपको। आप अपने ब्रेक्स को 15 मिनट, 30 मिनट और एक 15 मिनट ऐसे शेड्यूल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको उसको चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। ये ब्रेक्स भी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हो। ये वो टाइम है जब आप अपना सोशल मीडिया देख सकते हो। ये वो टाइम है जब आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। I hope all of you are very clear on this. Let's go ahead and look at the 6th tip. 6th tip है choose to eat well and most important, बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ अच्छा खाना नहीं खाए, समय पर खाना खाए। समय पर खाना खाना बहुत जरूरी है दोस्तों, उससे हमारी सेहत बनी रहती है। और अगर आज की डेट में सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो वो है हमारी सेहत। So make sure that we eat well and most importantly we eat on time guys। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की ओर। कितना भी टेम्पटेशन हो दोस्तों, कितना भी टेम्पटेशन हो, प्लीज अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल कीजिए न्यूज देखने का। क्योंकि जो भी चल रहा है आजू बाजू में, मुझे पता है हम सब लोगों को अपने आप को अपडेटेड रखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसा मैंने कहा, अपना जो ब्रेक टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए ये न्यूज देखने के लिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 बजे कोई अनाउंसमेंट होने वाला है और आप 5 बजे ब्रेक नहीं ले पाओगे, तो आपको करना क्या है, जो भी 5 बजे ब्रेक ले रहा है, जो मेरे ऑफिस के दोस्त है ये उनके लिए बता रहा हूँ, जो भी 5 बजे ब्रेक ले रहा है, आप उनको बोल सकते हो कि भैया ये अनाउंसमेंट होने वाली है, प्लीज जरा देख के आके मुझे बता देना। अगर अगर आपको लगता है कि आपको मालूम ही रहना चाहिए उस समय, तो आप अपने किसी दोस्त को बोल सकते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ठीक है, तो आप घर के किसी मेंबर को बोल सकते हो कि भैया 5 बजे वो न्यूज आने वाली है, प्लीज उसे देखना और सिर्फ आके तुरंत मुझे 1-2 मिनट में बता देना कि वो उसमें क्या बताया गया है। लेकिन एज फार एज पॉसिबल, जैसा मैंने कहा, अपने टेम्पटेशन को रोक के रखिए अपने ब्रेक टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना दोस्तों तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका फोकस जो है वो आपके काम पे ज्यादा रहेगा और आपका माइंड एकदम क्लियर रहेगा। एंड द लास्ट टिप, they call it the last tip, but I call it the most important tip, which is check your list of tasks that you had planned at the beginning of the day versus whatever you have completed। In simple terms, एक recap कर लीजिए दोस्तों। बहुत बहुत जरूरी है एक रिकैप करना, क्योंकि ये रिकैप हमें बताएगा कि क्या वो चीजें हैं जो हम कर पाए, कौन सी ऐसी चीजें जो मैंने लिस्ट में डाली थी और मैंने उसको कंप्लीट किया। जब आप इसको देखोगे ना दोस्तों, तो आपको खुद को ही समझ में आएगा, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि ओ वाह बहुत बढ़िया, मैंने आज बहुत बढ़िया किया, मैंने 5 चीजें लिख के रखी थी उसमें से 4 चीजें मैंने कंप्लीट कर दी। प्रोडक्टिविटी आपकी 100% पे चली जाएगी, आगे जाके आप 150% भी प्रोडक्टिव हो सकते हो। ठीक है, तो ये थे मेरे 8 टिप्स जो मैं आपको सबको देना चाहता था और मैं चाहूंगा कि इन टिप्स का आप उपयोग कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया लिखा है श्री मुकेश धीरूभाई अंबानी जी ने, और जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। दोस्तों, मुझे बहुत गर्व है ये बताते हुए कि मैंने श्री मुकेश धीरूभाई अंबानी जी की कंपनी में काम किया है। I have been an employee of Reliance in the past, and I'm very very glad that I've been a part of such a beautiful organization and such a motivating managing director that we had. So what he says is, it is important to remember that there are no overnight successes। तो जो मैंने 8 टिप्स आपको बताई दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको जोहारी विंडो टूल बताया तो कल आप उस पर मास्टर हो जाओगे। जो भी मैंने आपको टिप्स बताई है, जैसे मैंने टच इट वंस रूल बताया है, जोहारी विंडो बताया, दोस्तों इनको आपको रोज 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 प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जब आप इनको रोज रोज प्रैक्टिस करोगे तभी आपको इस पे मास्टरी आएगी।
तो ये ओवरनाइट हमें सक्सेस नहीं मिल सकता। आज आपने टिप्स पढ़ ली तो कल से आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। यू नीड टू बी डेडिकेटेड, यू नीड टू बी सिंगल माइंडेड, यू नो, फोकस्ड, बिकॉज देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क गाइस। कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई भी चीज आपको आसानी से नहीं मिलेगी लाइफ में, आपको उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो विद दिस थॉट आई वुड लाइक टू let you know that it was absolutely wonderful for me to discuss about the productivity tips. So a quick understanding about our journey guys. Again a quick recap, जैसा मैंने बोला recap बहुत जरूरी है। तो हमने शुरुआत की थी अडेप्टिंग आवर माइंडसेट, अपने माइंडसेट को खोलने की, इनफाइनाइट बनाने की। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हमारे सामने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है हम उनको कैश इन करें, कैसे हम ये इंश्योर करें कि हमारी जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो वेस्ट ना जाए, 75% अपॉर्चुनिटी मंत्रा का उपयोग करके। और आज हमने देखा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे घर पे या हमारे वर्क प्लेस पे हमें अफेक्ट करते हैं दोस्तों, और कैसे हमें ये 8 टिप्स का उपयोग करके इन फैक्टर्स को जो है, इन फैक्टर्स को हमें नलिफाई करना है दोस्तों, ठीक है। सो I am absolutely glad that I was able to bring this out to you guys. Okay. Before I open this forum for questions, I want to thank all of you for attending this webinar, guys. You know, I hope that all of you enjoyed it as much as we at Skillifant enjoyed bringing these webinars to you, bringing this series to you guys. There is a feedback form that will be sent to you at the end of this webinar. But something very important, guys. Yeah, this is not the end. We want to help you succeed. We want to help you succeed as a team. We want to help you succeed as an individual, guys. Yeah. When it comes to we wanting you to succeed as a team, our mantra is to, you know, devise a customized learning program. It could be either in the form of a webinar, or tomorrow when things become a little better, it could be a personalized, personal training as well. You know, things like preparing yourself for the new normal, that is the COVID-19 guideline and working styles. Guys, we've already been, you know, doing this for other organizations as well. So if you feel that this is very important and you need to do it for your team, your organization, the number to call and the email address to send us an email and let us know about it is mentioned below, guys. Yeah. If you feel that, you know, you want to start a business, we are there to help you. We are there to mentor you. If you feel that you want to get your dream job and you want help on how to get that dream job, we are here for you. We will mentor, we will coach you, we will help you in all those things. How? Again, the number to call is available at the bottom and the email address is also reflecting on the screen, my friends. So I will also request you that follow us and learn from us every day from all the social media platforms that are on the screen right now for you guys. I want to once again thank all of you for being here, and I would like to throw this forum open for any questions that you may have, my friends. Thank you very much, Mr. Shah. You know, thank you very much for your motivating words. They are really encouraging and inspiring. Thank you, Neha. Thank you, Aniket. Thank you very much. You know, we'll give it another 30 seconds because there are some questions that are flowing. So I don't want to interrupt the flow right now. I'll give it maybe another 30 seconds or a minute, and then I will start answering the questions, guys. Thank you, Manish, for your inspiring words. Thank you, Paresh. Thank you, Prachi. Okay, I'll give it another 10 seconds because I can see a couple of questions that were there. Thank you, Mr. Dhumal. Thank you very much for your comments. Thank you very much. Guys, just give me 1 minute. I have a couple of questions that have come up and I want to answer them, but I would request you to just give me 1 minute. Okay, guys? Right. Thank you very much for your patience, and I'm sorry that I had to go off. Just wanted to have a quick water. Just wanted to quickly sip water. So दोस्तों मुझे 3 सवाल आए हैं
सो मैं एक एक करके सवाल बताऊंगा और आंसर दूंगा। पहला सवाल है, will we be able to work the same way as compared to what it was before companies closed down? Will this affect my company's productivity? ठीक है? So the answer to this question is, guys, whilst most of the things in terms of the actual work will not change, आपका जो actual work है वो change नहीं होगा। अगर आप 2 महीने पहले कुछ काम करते थे तो आज भी आपको वही काम करना है। चेंज होगा तो गाइडलाइंस ऑन हाउ टू वर्क। ठीक है? एज अ लीडर, it is important that the entire staff is made aware of the new working guidelines. Something as basic as, wearing masks, gloves, and all those things. This also, involves disinfecting the entire company premise and making sure that all the employees are sanitized from time to time. I know this will take a toll on the productivity to begin with. However, consistent communication with employees and all your subordinates will help you understand the problems on the ground level. It's very important you consistently keep communicating with your employees, the frontline guys, because they are the ones who will tell you what are the things that can be improved or what are the things that can be changed. You'll be able to analyze that the time taken for all the activities and all the feedback that you receive, you'll be able to analyze a lot of things, guys. The first thing that you will be able to analyze is how much time is getting invested in this. Once you analyze this, you shall be able to plan in a better way to adapt yourselves to have better outputs, to have better productivity, guys. Yes, so your actual work is not changing in a nutshell. It's the guidelines that will be changing, and as leaders, it is important for us to let our employees know all the guidelines properly. Yeah. The next question that I have is how to minimize distractions at home as I stay in a 1 BHK apartment. Very interesting. Okay. As discussed during the webinar, जैसे मैंने webinar में discuss किया था, it is very important to choose the right place to sit and work in the house. बहुत जरूरी है कि घर में वो सही जगह ढूंढना और वहां से काम करना। ठीक है? उसके बाद जैसे मैंने आपको वो टिप बताई थी, जो मेरी पहली टिप थी, गेट योर वर्क स्टेशन रेडी, एंश्योर दैट यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड। ठीक है? जैसा कि मैंने बताया था, इफ दिस मीन्स दैट यू हैव टू अटेंड एनी मीटिंग और एनी वेबिनार ऑन जूम, you make sure that you have all the tools, all the applications ready with you. Ensure that the place that you have chosen to sit has got enough light, you've got the best internet plan on your device, also your headsets, your headphones, everything is working and in proper order. If possible, get a headset or a headphone which is noise cancellation enabled. If not, at least have a proper headset and keep your headphones and everything in the right place. Most importantly, let your family know that you are having a meeting right now, or let your family know about the schedule that you have. यदि आप टू डू लिस्ट बनाओगे जो हरी विंडो से, तो आपका शेड्यूल आपको पता रहेगा। अपने फैमिली को बताइए कि मेरा ये शेड्यूल है, ठीक है, उसमें ये इतने बजे मेरी एक मीटिंग है, इतने बजे मेरा एक कॉल है, तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें, आप नॉइज बहुत कम रखें, सो दैट आई कैन फोकस ऑन माय वर्क एज वेल, गाइस। या these are some hints and tips which will definitely help you to minimize interactions, my friend. Right? And let me go to the third question. Sometimes I have been told to complete 2 assignments on the same day. What should I do? बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें 2-3 असाइनमेंट्स बोल देते हैं एक ही दिन में कंप्लीट करने को। इंपॉर्टेंट ये है कि एनी असाइनमेंट और एनी टास्क दैट इज गिवन टू यू हैज टू बी कंप्लीटेड। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये काम करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा। करना तो हमें सब कुछ है, ठीक है। What needs to be done is a priority check, ठीक है। अगर आपको 2 असाइनमेंट दिए है तो आप डेफिनेटली प्रायोरिटी चेक कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल अगर मुझे किसी ने पूछा तो मैं बता देता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ कि भैया दोनों में से बहुत ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कौन सा है आपके लिए। तो जैसे वो मुझे बता देते कि दोस्त ये मेरे लिए अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, मेरा प्रायोरिटी ऑलरेडी सॉर्टेड रहता है उसमें, ठीक है। अब इसमें से ऐसा होगा कि अगर दोनों भी अर्जेंट है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोग बोलेंगे दोनों भी अर्जेंट है श्रीनिवास, ठीक है। तो अब उसमें से आपको ये देखना है अपने जोहारी विंडो टूल में से कि क्या है जो बहुत ज्यादा अर्जेंट है। अर्जेंट में भी प्रायोरिटीज होंगी, प्रायोरिटी 1 2 3, तो आपको ये देखना है कि कौन सा उसमें से ज्यादा अर्जेंट है।
कौन सा है जो थोड़ा टफ है, जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, आप उसको प्रायोरिटाइज कीजिए और उसके हिसाब से आप काम कीजिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एक चालू करोगे करने को, जब आप एक टास्क करने को चालू करोगे, आप इंश्योर करना कि आप दूसरे टास्क को बिल्कुल हाथ नहीं लगाओगे। आपको शायद रिमाइंडर्स आएंगे या रिकमेंडेशंस आएंगे कि दूसरे का क्या हो रहा है, आप काम रहिए, एकदम कूल रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक टास्क पे जब फोकस करोगे तो आप 100% उस टास्क को परफेक्टली कर पाओगे विद इन योर प्रोडक्टिव टाइम, और फिर आप दूसरा टास्क भी कंप्लीट कर सकते हो जैसे आपका पहला हो जाएगा वैसा। और जब आप दूसरा टास्क कर रहे हो तो प्लीज तीसरे टास्क पे मत जाइए, आप दूसरा कंप्लीट कीजिए, फिर तीसरा टास्क हाथ में लीजिए। शुरू शुरू में शायद आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली इसमें फोकस्ड रहोगे और आप डेडिकेटेडली इस प्लान को फॉलो करोगे, तो ऐसा होगा कि आपको खुद को ही समझ में आएगा कि कुछ ही दिनों में आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही आगे बढ़ गई है, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई और क्वेश्चन या कुछ आया है, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं बताता हूँ। तो आई एम श्योर यू नो, आई होप आई वाज एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, you know, and I hope you got the right information that you needed. Just give me a minute, let me quickly check कि कोई और question आया है क्या। In this lockdown, some of the company got approval to do work, but family are not allowing to do. In that case, what to do? Yeah, बहुत important है। क्या हमारी फैमिली शायद अलाउ नहीं करेगी, और उनकी गलती नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो आपकी वेलबींग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप सेफ और सुरक्षित रहिए। इसमें एज अ लीडर, एक कंपनी का अगर मैं कोई लीडर हूं, तो एज अ लीडर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू लेट माई एम्प्लॉइज नो, यू नो, दैट दे आर गोइंग टू बी सेफ एंड साउंड एट वर्क। जैसा कि मैंने बताया था, यू नो, डिसइंफेक्शन, सैनिटाइजेशन, all these things, all these guidelines, they need to be cascaded to the employee, and the employee has to be confident. तो दोस्त, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपकी कंपनी आपको ऑफिस को आने को बोल रही है, तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि आपकी कंपनी ने आपको आने को बोलने के पहले ही बहुत सारी चीजों का प्रबंध करके रखा है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा को कोई धोखा पहुंचे। तो बिल्कुल मत घबराइए, आप भी कॉन्फिडेंटली अपने फैमिली को बोल दीजिए दोस्तों, क्योंकि धीरे 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 हमको आगे बढ़ना है गाइस। हम नहीं रह सकते घर पे, इस कोरोना ने बहुत सारा नुकसान किया है हमारा। हमें कॉन्फिडेंट रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है, हम डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है, हाउ टू हैंडल प्रेशर एट वर्क आफ्टर लॉकडाउन एट वर्क प्लेस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रेशर जो होता है ना, वो हमारे दिमाग में होता है, वो हमारे काम में कभी नहीं होता दोस्तों, ठीक है। एक चीज याद रखिए, आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो, आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप प्रेशर सोच के बैठोगे, तो आसान से आसान काम में भी आपको प्रेशर आएगा, आपको एकदम फ्रस्ट्रेटेड लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं पहले एक काम खत्म करूंगा, मैं चेक करूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, ओके ये इंपॉर्टेंट है, चलो ये कर लेता हूँ, इसके बाद ये कर लेता हूँ, आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबको पता है, मतलब अगर मैं एक एक वर्कर हूं, तो मुझसे लेके मेरे जो मैनेजर्स है या मेरे जो कंपनी के मालिक है, उनको भी पता है कि सिचुएशन क्या है अभी। तो आई एम श्योर हर एक इंसान जो है फिलहाल वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो जो अपना, जो सब लोग अपना बेस्ट दे सके, ताकि हम कंपनी को और हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। तो मेरे लिए तो प्रेशर नाम की कोई चीज है ही नहीं दोस्त, कि प्रेशर सब माइंड में, सब दिमाग में होता है। आप बार बार अपने माइंड को बोलोगे ना कि यार मेरे को प्रेशर आ गया, मैं तो नहीं काम कर पाऊंगा शायद, तो आप डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, और एकदम छोटा से छोटा काम भी आप कर नहीं पाओगे। लेकिन आप बार बार अगर अपने माइंड को बोलोगे कि यस तू कर सकता है दोस्त, तेरे में वो काबिलियत है, तेरे में वो कैपेबिलिटी है, तो आप डेफिनेटली डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम भी आसानी से, टास्क भी आप एकदम आसानी से कर सकते हो, ठीक है दोस्त। एक और सवाल आया था, मैं जस्ट फटाफट चेक कर लेता हूँ। ओ सॉरी, नेहा शर्मा मुझे बोल रही है कि कैन वी ज्वाइन ऑन अ डेली बेसिस, होप वी आर नॉट बॉदरिंग यू। थैंक यू नेहा, यू नो वी विल बी ग्लैड टू टॉक टू यू ऑन अ डेली बेसिस, you know, in case you know you need any help or anything, the WhatsApp number and the email address and the contact number is also displayed, Neha. Please get in touch with us, you know, we will be very happy to discuss anything that can help you to be successful.
एक क्वेश्चन आया है, कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन फॉर इकोनॉमी टू ओपन अप, would you advise a change in the profession? I am into luxury interiors and building, which may not start soon enough. Go back to the basics which sell. सही है। देखिए आप अपना ही काम ना, शिव खेरा जो है, शिव खेरा एक बहुत ही विजनरी ऑथर है, इनकी बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप भी पढ़े। इनका एक बुक है जिसमें इन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ठीक है, तो आपको अलग अलग चीजें नहीं करना है, आप जो भी कर रहे हो उसको आप कैसे अलग तरीके से कर सकते हो ये आप देखिए। अगर आप इंटीरियर्स और लग्जरी के बिजनेस में हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं जिनको आपकी मदद की जरूरत है, तो जैसे हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं आप भी ऐसे लोगों को हेल्प कीजिए, आप भी कोई सेशन प्लान कीजिए, आप भी कोई टिप्स बनाइए उनके लिए और उनको फॉरवर्ड कीजिए, आप ऐसे सोशल मीडिया का हेल्प लीजिए। काम तो चलता ही रहेगा मैडम, काम जो है वो कभी रुकता नहीं है, अगर हम रोकेंगे तो काम रुकेगा, अगर हम नहीं रोकेंगे तो काम कभी नहीं रुकेगा। ठीक है मैडम, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज, आपके एक्सपीरियंस को यूज करना चाहते हैं, बस आपको उन तक पहुंचना है या आपको एक जरिया बनाना है जिससे वो आप तक पहुंच सके मैडम। ठीक है, मुझे लगता है कोई और क्वेश्चन आया है, मैं क्विकली देख लेता हूँ। ओके, नहीं कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। यस नेहा, यस प्लीज गेट इन टच विद अस। ठीक है, 1 मिनट और रुकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आया तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आई एम हैप्पी दैट आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस गाइस। दोस्तों सिर्फ अपना माइंड क्लियर रखिए, माइंड क्लियर रखिए, आपको क्या करना है, अपने गोल्स लिखते रहिए, अपने टू डू लिस्ट बनाते रहिए, लाइफ में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, कुछ भी कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता, सब कुछ बहुत आसान है, बस हमें हमारी सोच को आसान बनाना है। ओके, एक मैसेज आया है मुझे, पहले थोड़ा सा बड़ा है तो मैं पहले पढ़ लेता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रतिज्ञा, आई एम सो ग्लैड दैट। तो दोस्तों मैं बताता हूँ हुआ क्या है। प्रतिज्ञा भोसले करके एक हमारी पार्टिसिपेंट है, उन्होंने हमारा पिछला वेबिनार अटेंड किया था, कैशिंग इन ऑन दी अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे मैंने 75% अपॉर्चुनिटी मंत्रा की बात की थी और उसे कैसे यूज करना है उसकी बात की थी। तो प्रतिज्ञा आज मुझे बता रही है कि उन्होंने इस मंत्रा को यूज किया और उनकी कुछ चीजें थी जो अटकी पड़ी थी, वो ब्लॉग्स लिखती है, तो उनका पहला ही ब्लॉग जो उन्होंने डाला उसको बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। ठीक है, एक न्यूज़पेपर के एडिटर है, उन्होंने उनको कॉल किया और उनको बोला कि उनके न्यूज़पेपर में लिखो, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल गाइस, आई टोल्ड यू, यू नो, आप रोक के मत रखिए, गेट स्टार्टेड। यस, कांग्रेचुलेशंस प्रतिज्ञा भोसले, एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, you know, and my wishes to you that you succeed in your upcoming ventures as well. We have a quick question from Paresh. Okay, how would the market react after lockdown? Okay, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑनेस्टली मार्केट ये मेरा फोर्टे नहीं है परेश, बट एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिएक्शंस है वो मिक्स्ड आने वाली है। ठीक है, तो हमें मार्केट के उस हिस्से में फोकस करना है जो पॉजिटिव है, जो आगे बढ़ रहा है, जो खुद भी आगे जा रहा है और मार्केट को भी आगे लेके जा रहा है। ठीक है, रिएक्शंस तो मिक्स्ड आएंगी, ये तो 100% श्योर है माय फ्रेंड, यू नो, कुछ नेगेटिव रिएक्शंस आएंगे, कुछ पॉजिटिव रिएक्शंस आएंगे, हमें पॉजिटिव रिएक्शंस को पकड़ के चलना है, हमें नेगेटिव रिएक्शंस को पकड़ के नहीं चलना है। ठीक है, हम पॉजिटिव रिएक्शंस को पकड़ के चलते हैं, सब पॉजिटिव ही होगा हमारे लिए परेश। ठीक है, सुपर ग्रेट,
So once again, thank you so much, guys. It was a pleasure answering all your questions here. Yeah. And I'm absolutely glad that we were able to bring this series to you. Yeah. Before I close, once again, the number to contact or WhatsApp is on the screen and the email address is there. Do keep in touch with us. We will be glad to, bring you much more learning programs, much more webinars in the future. Stay healthy, stay safe, and last but not the least, be successful in your life, guys. Thank you very much.